Hello friends, I am Manoj Kapoor, founder and CEO of Taxo Credit. Welcome all of you for the today's webinar and wish all of you the very happy new year and the loads of good wishes for the 2026. As all of you know, now today's session, all of you know that today's session is very unique and a very emerging subject like beyond balance sheet analysis of the business health, any business health with the help of the GST data. As all of we aware that the current age belong to the technology and implication of data engineering, applicability of the AI tools and intelligent the use of the APIs. Lots of APIs available in our ecosystem gives you the totally different perspective from the traditional method of the ड्यू डिलिजेंस और द रिस्क वैलिडेशन ऑफ द एनी बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी से नई नई चीजें हम निकाल रहे हैं उससे कैसे आप बैलेंस शीट से डिफरेंट वे में किसी भी बिजनेस का रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक फॉर द टुडे सेशन एंड एमलगमेशन ऑफ अवर ऑडिट माइंडसेट विद द टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन द अवर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को कैसे स्ट्रेंथ करता है and helpful in the identification of the future liabilities, future notices, compliances के governance की किस तरह से compliances किसी organization की चल रही हैं, fake invoicing, circular transaction and many more. So I am not going to cover the each and everything because in the coming session our product head CS Saurabh Garg will cover the details in the short while. And in the meantime, I will invite our mentor Siyatul Gupta ji, is the past president of the ICI, to say few words and explain us the importance of the topic which we are going to deliberate today. Over to Atul ji. Thank you, Manoj ji, and very good evening, friends. And I will only say one line that today, when we are living in the era of artificial intelligence, blockchain, it is very important that while whether we are doing the audit, we are reviewing any GST compliances, or even we are trying to scrub any proposed borrower, may it be the NBFC banks or whether it's related to the GST related loan or otherwise. It's very important that rather than relying only on the historical data, which is available through the financial statement, should review the real-time data, the trends, the non-compliances, the contingent liabilities, the future liabilities on account of the various non-compliances vis-a-vis the excess credit claimed, excess ineligible credit claimed, there is the allegation of the fake suppliers. So there are many things which can impact the solvency, the compliances, the future cash flow of the SSC of the borrower. And accordingly, I believe that the real-time data analysis, as going to be discussed by Saurabh, with the help of the AI, with the data mining and the access to the real-time data with the new era of GST and API integration can be very, very useful for all of us. So whether that bank colleagues who are going to take the benefit of these reports will be able to do a better scrubbing of the borrower, or the other colleagues, the other chartered accountant colleagues who are looking, who are attending this particular program, that how the GST or the due diligence can support not only for the GST compliances but also overall audit quality. So that is something very interesting will be there when the Saurabh will be explaining the various aspects related to this data mining process, which he along with the team has invented. So I believe, I wish the good luck to Saurabh, and I believe that his deliberation will be very useful for all of you. Thank you. Thank you, Atul ji. I'll be just presenting my. Yeah. I hope my screen is. Yes, sir. Thanks, Atul ji, for laying the background, and welcome all the participants. Myself, CS or I will be going through with all the with the topic, today's topic, which is beyond the balance. As the topic suggests that in today's friends, normally जब हम किसी business की health को evaluate करते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेफर करते हैं और कहीं ना कहीं हम सिविल डेटा को भी रेफर करते हैं टू असेस द बिजनेस। लेकिन आज के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में हमें सिर्फ फाइनेंशियल डेटा काफी नहीं है, सौरभ जी, हमें हम आपके बियॉन्ड द बैलेंस स्लाइड चेंज नहीं हुई है ना प्लीज। तो आज के एनवायरनमेंट में जब हम बात करते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जीएसटी का डेटा भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें बिजनेस की हेल्थ को वेरीफाई करने के लिए, असेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम आज के इस वेबिनार में इसी पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि बियॉन्ड द फाइनेंशियल डेटा जीएसटी का डेटा कैसे इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल डेटा में क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि जीएसटी का डेटा भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ड्यू डिलिजेंस। तो
एज यू कैन सी कि जब हमने समझ लिया कि बिजनेस हेल्थ को सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं असेस करना चाहिए, जो कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो जो हम आज की डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू असेस करते हैं बिजनेस की हेल्थ, वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हमें आज के टाइम में एक न्यू जनरेशन के अंदर जहाँ पे एआई बेस्ड एनालिसिस होते हैं, वहां पे हमें जीएसटी का डेटा भी एक इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पे हमें असेस करनी चाहिए बिजनेस। तो अब हम इस स्लाइड के थ्रू समझेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करने में, और क्या हमें बेनिफिट्स हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो कि है मेरी एआई पावर्ड जीएसटी कंप्लायंस डेटा के एनालिसिस को करने से क्या मेरे को फायदा। तो हम सबसे पहले ये तो जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर मेरे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं कि उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, मैनुअल डेटा कंपाइलेशन। मेरा हिस्टोरिक डेटा, कोई भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू अगर बिजनेस की हेल्थ को असेस करता हूँ तो बैलेंस शीट जो होती है वो एज ऑन डेट, तो मैं उस डेट तक उसको फाइनेंशियल को उसकी बिजनेस हेल्थ को इवेल्युएट कर रहा हूँ, ना कि आज तक की डेट का करंट। फिर मेरी डिपेंडेंसी होती है ह्यूमन जजमेंट पे, क्योंकि जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर जो मेरे पॉइंट्स निकल कर आते हैं उसके अंदर एक चार्टर्ड है, एक प्रोफेशनल है जो अपने स्किल के ऊपर, अपने प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पे, अपनी जजमेंट के बेसिस पे निकालता है कि इसमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या। नेक्स्ट, इसके अंदर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स नहीं आइडेंटिफाइबल होती, जो मेरा फाइनेंशियल ये ट्रांजेक्शन लेवल डेटा नहीं होता, तो इसके अंदर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स है, कोई क्रेडिट, कोई अमेंडमेंट हुई, उस तरह का मेरा कोई भी एडजस्टमेंट्स आइडेंटिफाइबल नहीं। नेक्स्ट, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है मेरा, क्योंकि अगर हम किसी बैलेंस शीट की बात करें तो मेरी कंसोलिडेशन होती है, इंडिविजुअल मेरी ब्रांच लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, देन उसकी कंसोलिडेशन होती है एक पैन इंडिया लेवल पे, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के अंदर। और नेक्स्ट जो है मेरा इसके अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक एज ऑन डेटा होता है, तो ये मेरी कोई भी अर्ली वार्निंग रिस्क कैपेबिलिटी नहीं बताती। मींस अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई डेटा प्रेजेंट है तो वो ये बताती है कि ये आपके एरर्स हैं, उस एरर्स के ऊपर आपको कैसे उसके ऊपर मिटिगेट करना है या कैसे उसके ऊपर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। ये कोई भी अर्ली वार्निंग सिग्नल नहीं देती फ्यूचर लायबिलिटी प्रेडिक्ट करके। वेयर एज अगर हम बात करें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में मुझे क्या क्या फायदा होता है कि इसमें ऑटोमेटेड डेटा, क्योंकि मेरी एआई पावर्ड होती है, एपीआई एनेबल्ड होती है, तो मेरे पास एज ऑन डेटा आ जाए, हिस्टोरिकल डेटा नहीं, यहाँ पे रियल टाइम इनसाइट्स, जिस भी दिन मैं डेटा फेच कर रहा होता हूँ उस डे तक का मेरे पास एनालिसिस। नेक्स्ट मेरा, जहां अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो वहां पे मेरी हैवी डिपेंडेंस होती है ह्यूमन जजमेंट पे, और उसी के बेस पे एनालिसिस निकलते हैं। जबकि मेरी जीएसटी कंप्लायंस के डेटा के बेस पे कोई एनालिसिस होता है, एआई पावर्ड एपीआई एनेबल्ड होता है, तो ट्रेंड और पैटर्न के बेसिस पे एनालिसिस होता है, जो कि ज्यादा रियलिस्टिक एनालिसिस। एडजस्टमेंट्स जो होती है वो आइडेंटिफाइड होती है, क्योंकि जो जीएसटी का डेटा होता है वो मेरा ट्रांजेक्शनल लेवल, किसी भी तरह के एडजस्टमेंट, चाहे वो सब्सिक्वेंट क्रेडिट इशू या मेरी सब्सिक्वेंट मेरी अमेंडमेंट हुई हो किसी ट्रांजेक्शन, तो वो सारी में इजिली अवेलेबल। नेक्स्ट, ये इंस्टेंट होती है, एक्यूरेट होती है बिल्कुल, क्योंकि ये सारा एपीआई ड्रिवन होता है, तो ये लेस देन वन मिनट अगर हम चाहें तो जिस तरह की हमें रिपोर्ट से होती हैं वो लेस देन वन अंदर भी हम इसको स्क्रब करके निकाल। नेक्स्ट, इसके अंदर हम अर्ली वार्निंग सिग्नल्स और रिस्क असेसमेंट भी निकालते हैं। बस ट्रांजेक्शन लेवल डेटा होता है, मेरे पास एनालिसिस होता है, मैं ट्रेंड के बेसिस पे एनालिसिस निकाल रहा होता हूँ, फ्यूचर लायबिलिटी प्रिडिक्ट कर, कोई मेरे प्रीवियस डेटा के बेसिस पे मेरी क्या फ्यूचर के अंदर लायबिलिटीज आ सकती, उस तरह का एनालिसिस भी अवेलेबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जैसे ही बिजनेस इवॉल्व हो रहा है वैसे ही ड्यू डिलिजेंस की अप्रोच भी चेंज, तो इसलिए अब हमें समझना होगा कि जो चैलेंजेस या शॉर्टकमिंग्स है मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, उसका सॉल्यूशन क्या है और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, और हम कैसे एआई बेस्ड ड्यू डिलिजेंस जो मॉडल्स हैं उनका यूज करके हम अपने एनालिसिस को और अच्छा कर। इस स्लाइड के ऊपर हमने वो डिस्कस करने ही, तो इसके अंदर हम जो भी चैलेंजेस हैं मेरे ट्रेडिशनल ड्यू डिलिजेंस के, जहां पे हम फाइनेंशियल डेटा, स्टेटमेंट्स और सिविल डेटा को यूज करके निकालते हैं, और क्या उसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है एआई बेस्ड ड्यू डिलिजेंस में, जहां पे हम जीएसटी का डेटाबेस एज अ बेस। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हिस्टोरिकल डेटा होता है, और जबकि मेरा एआई बेस्ड जो ड्यू डिलिजेंस होता है वो रियल टाइम होता है, पीरियोडिक बिजनेस एक्टिविटी जो भी होती है उसको ट्रैक कर, तो इसके अंदर रियल टाइम हमारा एनालिसिस। नेक्स्ट बात करें तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चैलेंज होता है वो होता है टाइम कंज्यूमिंग, और उसके अंदर एरर होती है, कंसोलिडेशन। वेयर एज इसके एआई बेस्ड ड्यू डिलिजेंस के अंदर जो मेरा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उसके अंदर, क्योंकि वो एपीआई बेस्ड ड्रिवन है, वो फास्ट होती है और एक्यूरेट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो होती है ह्यूमन सेंट्रिक, वहां पे कोई भी ऑटोमेटेड डेटा फ्लो नहीं होता। वेयर एज जो मेरा एआई बेस्ड होता है वो ट्रेंड और पैटर्न बेस्ड एनालिसिस, तो वहां पे ह्यूमन अप्रोच होती है, जहाँ पे एक प्रोफेशनल होता है, वो अपनी स्किल बेस्ड जो होता है उसके अंदर अपनी अप्रोच लगा के एनालिसिस करता है और उसके अंदर फाइंडिंग्स निकालता है। वेयर एज एआई बेस्ड में जो ट्रेंड और पैटर्न बेस्ड है, जो कि मच पावर। यहाँ पे ट्रेडिशनल के अंदर मेरी कोई भी सेगमेंट लेवल
रिपोर्टिंग या डिस्क्लोजर्स नहीं हो। अगर आप बैलेंस शीट को देखते हैं तो वहां पे कोई सेगमेंट लेवल रिपोर्ट, जैसे कि अगर हम टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर के अंदर कितनी मेरी B2B टर्नओवर है, कितनी B2C टर्नओवर है, कौन कौन से HSN इन्वॉल्व, उस तरह का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं। वेयर एज हमारा जो GST डेटा होता है वो बेसिकली, क्योंकि मेरे पास ट्रांजेक्शन लेवल डेटा होता है, तो मेरे पास सेगमेंट लेवल डिस्क्लोजर्स भी होते हैं जो कि मेरी ऑपरेशनल क्लैरिटी को, कि हाँ ये पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर बिजनेस कौन कौन से सेगमेंट्स में डील करता है, B2B में, एक्सपोर्ट्स में, निल रेट, कौन कौन से HSN यूज, सर्विसेज, गुड्स हैं, ये सारी क्लैरिटी जो है मेरे को GST के डेटा से आ जाए। नेक्स्ट, इसके अंदर ट्रेडिशनल ड्यू डिलिजेंस के अंदर मेरे को कोई भी जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होती हैं उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं, क्योंकि वो एक एक एज ऑन डेटा होता है मेरे पास, उसके अंदर फाइनेंशियल नंबर्स होते हैं, तो मेरे पास कोई फ्यूचर लिटिगेशंस जो हो सकती हैं, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस जो हो सकते हैं, वो नहीं अवेलेबल। वेयर एज इसके अंदर जो मेरी AI बेस्ड जो अंदर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए, इसके अंदर मैं अलग अलग तरह की आपकी पोटेंशियल लाइबिलिटीज निकाल, जैसे कि कोई मेरा 2A 3B का मिसमैच है तो उसकी कोई लाइबिलिटी अगर फ्यूचर लाइबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मैं इनवॉइस वाइज लेवल, कोई मेरा GSTR 1 वर्सेस GSTR 3B मींस मेरी कोई शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस का कोई अगर इशू है तो मैं वो आइडेंटिफाई करके आप, इस तरह की जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेरी AI बेस्ड ड्यू और मेरी ट्रेडिशनल ड्यू डिलिजेंस में नहीं। नेक्स्ट इज, मेरी ट्रेडिशनल ड्यू डिलिजेंस में कोई भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जहां पे मैं फेक और सर्कुलर ट्रेडिंग को पकड़, वेयर एज जो मेरा आज की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर अगर मैं फेक और सर्कुलर ट्रांजेक्शन्स के अंदर इन्वॉल्व होता हूँ तो वहां पे मेरा क्या होता है, मेरी टर्नओवर जो है वो इन्फ्लेट हो जाती है, मेरी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आता मेरी बिजनेस। तो इस तरह की जो एनालिसिस है वो हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल डेटा के अंदर नहीं फिजिबल, ये AI बेस्ड जो ड्यू डिलिजेंस है उसी के अंदर, इसके अंदर कोई भी विजिबिलिटी नहीं होती ट्रेडिशनल डेटा के अंदर कि मेरे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो मेरे आने वाले टाइम में हो सकती, जबकि मेरे AI बेस्ड के अंदर, क्योंकि मेरे पास मेरे पास लाइन वाइज डेटा अवेलेबल है, जैसे कि कोई भी अगर मेरी फ्यूचर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल जैसे इस बेस पे नोटिस बहुत ज्यादा होते हैं जहां पे सप्लायर का नॉन कंप्लायंस हो जाए, तो जहां पे सप्लायर का नॉन पे जो परचेजर होता है ITC अवेल कर रखा होता है, तो वहां पे अगर उसको कोई उसकी लाइबिलिटीज है फ्यूचर, क्योंकि अगर उसका सप्लायर तरह की कैपेबिलिटीज भी हैं AI बेस्ड में, जहां पे वो उन सब सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करके जिनका रिजल्ट सस्पेंड हो गया उनकी कितनी लाइबिलिटीज हैं वो सब भी आप बता सकते, इतना पावरफुल है। नेक्स्ट, इसके अंदर कोई भी कंसंट्रेशन रिस्क नहीं बता सकता, इसके अंदर सिंपल एक नंबर्स होते हैं फाइनेंशियल डेटा की मेरी X नंबर ऑफ टर्नओवर है या मेरी X नंबर ऑफ परचेज है, तो इसके अंदर कोई भी कंसंट्रेशन नहीं हो सेलर और परचेज। जबकि अगर हम AI बेस्ड ड्यू डिलिजेंस की बात करें तो इसके अंदर हमारा बायर और सप्लायर का कंसंट्रेशन है, मेरे टॉप बायर्स में इजीली निकाल ऑन ए क्लिक ऑफ मेरे टॉप बायर्स, टॉप सप्लायर्स, तो उस तरह की। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रांजेक्शनल, जिसकी हम बात कर रहे हैं इतनी देर से कि इसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शनल डेटा अवेलेबल नहीं होता, जो कि जिसकी वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं पता लगता और उसकी वजह से ऑडिट क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वेयर एज इन AI बेस्ड ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लाइन बाय लाइन डेटा, मेरे पास इनवॉइस लेवल डेटा, मेरे पास सारा, तो ये मेरी एक ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है, क्योंकि मैं सब चीजें टाइमली आपको बता रहा हूँ, आपको फेक इनवॉइस, सर्कुलर ट्रेडिंग, पोटेंशियल लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू देता है आपको, और आपको ऑडिट क्वालिटी के अंदर भी सब। नेक्स्ट इज, क्योंकि हमने बात करी थी कि हम कहीं ना कहीं आज की डेट में ट्रेडिशनल ड्यू डिलिजेंस जो होता है उसके अंदर बिजनेस हेल्थ को एसेस करने के लिए हम कहीं ना कहीं सिविल डेटा का भी इस्तेमाल, तो अब सिविल डेटा की बात करें तो सिविल जो है वो, अगर आप किसी भी व्यक्ति का सिविल निकालते हैं तो उसके अंदर एक रीपेमेंट बिहेवियर कैप्चर होता है, उसके अंदर कोई भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एज ऑन डेट, वो कहीं भी वो सिर्फ पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे आपको ये बता पाती है कि वो कितना टाइमली पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बेस पे आपको एक व्यू देती है कि इसको कितना लोन देना चाहिए या कितना इसकी क्रेडिबिलिटी है। वेयर एज अगर हम AI बेस्ड ड्यू डिलिजेंस की बात करें तो मेरे पास, क्योंकि उसकी ट्रांजेक्शन लेवल डेटा के साथ साथ मेरा कंप्लायंस का बिहेवियर, उसका रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, हमें को पता है कि वो कौन कौन से HSN में डील, कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील कर रही है, तो मेरे को एक फेयर आइडिया लग जाता है कि ये रेवेन्यू जनरेटिंग है या नहीं है। तो मैं मच बियॉन्ड द सिबिल, जो सिबिल तो खाली रीपेमेंट बिहेवियर बताता है, मैं उससे ज्यादा बताता हूँ कि फ्यूचर में आपका लोन रिपे कर पाएगा बेस्ड ऑन। नेक्स्ट इज, ये जो है वो ऑफर्स डिस्क्रिप्टिव इनसाइट्स रादर देन डिसीजन ट्री, तो ये बेसिकली आपको डेटा प्रोवाइड, जो बैलेंस शीट है या सिबिल डेटा, एक डेटा प्रोवाइड कर देती है, आपको कोई डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प नहीं करती। वेयर एज अगर हम इसकी बात करें AI बेस्ड ड्यू डिलिजेंस की, तो यहाँ पे हम बैकएंड में ऑटोमेट करके एक्शनेबल इनसाइट्स बना सकते हैं, उसमें रेड फ्लैग लगा सकते हैं, इंडिकेटर्स की कौन से किन किन ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें फ्यूचर के अंदर हमें कौन कौन से लाइन आइटम ऐसे हैं, कौन से इश्यूज ऐसे हैं जिनके लिए अभी से
अभी से उन पे ध्यान देना, और कौन कौन से ऐसे हैं इनको मैं छोड़, इस तरह का मेरा एनालिसिस है जो मैं एआई बेस्ड ड्यू डिलिजेंस के थ्रू में ये मेरे सॉल्व कर सकते हैं जो चैलेंजेस आज की एडिशनल ड्यू। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने आपको सारे चलता है, और राइट हैंड साइड में आपको मैंने उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बताए जो एआई बेस्ड थ्रू हो सकता है यूजिंग द जीएसटी। अब ये सारा जो डेटा है सर, ये आज की डेट में हमारी जो जीएसटी, ये सारा जो हमने एनालिसिस बताया, ये सारा हमारी एक जीएसटी फिट है जो आज की डेट में आप में से मैक्सिमम लोग यूज भी कर, ये सारा एनालिसिस हमारा इसके अंदर। अब बात करते, अब जो भी जीएसटी फिटनेस रिपोर्ट के अंदर जो भी मेरे कंटेंट्स हैं, जो मेरा एनालिसिस है, आई विल डिस्कस दिस बाय वन। हमने रिसेंटली इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ न्यू फीचर्स और उसका लेआउट भी हम आई डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट। एंड मीनवाइल अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो क्वेरी जो है वो चैनल, वी विल टेक ऑल द क्वेरीज इन द लास्ट। मूविंग ऑन टू द जीएसटी फिटनेस रिपोर्ट, तो जो हमारी जीएसटी फिटनेस रिपोर्ट है ये हमारी एआई पावर्ड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है जो कि असेस करती है जीएसटी कंप्लायंसेस को, रिस्क को आइडेंटिफाई करती है, फाइनेंशियल एक्यूरेसी को वेरीफाई करती है। और जो ये रिपोर्ट है मेरी, वो एक सिंगल जीएसटी के लिए भी आपने कहा पैन इंडिया बेसिस पे प्रोटेक्टेड रिपोर्ट चाहिए। अगर किसी एक कंपनी के पैन इंडिया 20 रीजन की अलग अलग जीएसटी रिपोर्ट। अब बात करते हैं सर कि इसके यूज केसेस क्या है। इसके मल्टीपल यूज केसेस हैं सर जीएसटी फिटनेस के। जैसे पहला यूज केस है सर बोरोवर ड्यू। अगर किसी की ड्यू डिलिजेंस, कोई बोरोवर या बैंक के पास लोन लेने आया है तो उसकी ड्यू नहीं है, तो हम इस रिपोर्ट को यूज फॉर देयर ड्यू डिलिजेंस। सेकंड, वेंडर ऑनबोर्डिंग। अगर किसी कंपनी को कोई वेंडर ऑनबोर्ड, अगर उसका ड्यू डिलिजेंस कितना सही है, कितना टाइमलिटी, कोई फ्यूचर लायबिलिटी, तो उस तरह का जो मैंने पहली वाली स्लाइड पे सारे एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस वो सब हेल्प करते हैं वेंडर ऑडिट। थर्ड जो है वो मेरे ऑडिट के अंदर मेरे को हेल्प करती हैं सारे पॉइंट्स कि अगर किसी ईयर एंड ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिट करना है, तो उस ऑडिट के अंदर मेरे ये सारे पहले से ही नहीं, तो ये ऑडिट के अंदर भी हेल्प। नेक्स्ट स्टार्टअप फंडिंग। कोई भी स्टार्टअप के अंदर अगर मैं फंडिंग लगानी तो स्टार्टअप की हेल्थ चेक करनी है, कोई उसकी फ्यूचर लायबिलिटीज कितनी जीएसटी कंप्लाइंट है या नहीं, वो सब चेक करने के लिए मैं ये रिपोर्ट। लिटिगेशन रिस्क असेसमेंट्स के लिए क्योंकि इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर हमारे एक एडिशनल फीचर जो है, मैं जो नोटिस, जो एक एसएससी के ऊपर अगर कोई नोटिस, अगर उस नोटिस की भी डिटेल देता हूँ, अगर उस तरह के लिटिगेशन के रिस्क, वो भी उसके लिए भी यूज। नेक्स्ट इज दिस रिपोर्ट इज कैन आल्सो बी सर्व एज अ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग डैशबोर्ड। तो एज आई सेड कि अगर किसी सीएफओ लेवल के अंदर, सीएफओ को अगर पैन इंडिया बेसिस पे अगर अपनी हेल्थ देखनी है, जीएसटी में अच्छा कर नहीं अच्छा कर, वो एक पैन इंडिया जीएसटी रिपोर्ट निकाल के भी एक डिसीजन मेकिंग तरह की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज न्यू फीचर्स। तो बेसिकली हमने क्या किया है सर कि इस रिपोर्ट को हमने न्यू लुक एंड फील दिया है, और इसके अंदर वेरियस न्यू फीचर्स हमने इनकॉर्पोरेट करे हैं जो कि मेरी इजियर नेविगेशन, इंप्रूव विजुअल प्रेजेंटेशन और यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस। तो हमने एक बार जस्ट जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसके अंदर 7 अलग अलग तरह के फीचर्स इंट्रोड्यूस। पहला फीचर जो है हमने वो टर्नओवर जो फिगर्स है, जो मेरी सेल्स की फिगर्स होती है, उसके अंदर हमने अमेंडमेंट्स को भी कंसिडर। तो अगर कोई भी एसएससी ने अगर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल किसी इनवॉइस के अंदर अमेंडमेंट को भी हमने इनकॉर्पोरेट करा अपनी इस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज जो एचएसएन जो डिक्लेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ जीएसटी। तो होता क्या है कि जब मैं जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, टॉप एचएसएन जो है वो जिस भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर मैं डील करूंगा, उस एचएसएन की डिटेल मेरे को डिक्लेयर करनी हो। वो एचएसएन कौन सा मैंने, वो डिटेल्स भी मैंने प्रोवाइड। एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो हमने उसको रिवाइज करके हमने उसको न्यू लुक एंड फील दी है, जिसके अंदर हमने जितने भी एनालिसिस हमने उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर किए, सबको हमने उसके अंदर एग्जीक्यूटिव फ्लैगिंग भी दी है, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो जिससे कि इमीडिएट अगर एक्शन लेना है किसी क्रेडिट मैनेजर को, तो वो विदाउट गोइंग, अगर किसी मैनेजर एक हमारी अंदर ऐसे। नेक्स्ट इज हमने एक इनपुट आउटपुट रेशियो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करी है विच आई डिस्कस लेटर इन द स्लाइड। एक हमने कंपैरेटिव एनालिसिस हमने इंक्लूड किया है जिसके अंदर जो टर्नओवर आपकी जीएसटीआर 1 के अंदर विद जीएसटीआर 7 विच इज अ टीडीएस जीएसटीआर 8, उसका एक कंपैरिजन आपको दिखाया है कि उन पर्टिकुलर तीनों रिटर्न्स में क्या क्या सेल्स फिगर। एक ये जो हमने अभी आपको मैंने बताया कि हमने जीएसटी नोटिस, तो जो भी जीएसटी नोटिस हुए होंगे एसएससी को फॉर द लास्ट 60 डेज, वो हमने इसके अंदर रिपोर्ट। नेक्स्ट इज 7th नंबर इज मंथली सेल्स एंड परचेज डेटा। तो पहले क्या होता था, एक सिंपल जो भी एज पर द रिटर्न फाइलिंग जो भी डेटा होता था, ओरिजिनली रिटर्न जो अंदर जो भी उसका मंथली सेल वो हम, बट क्योंकि अमेंडमेंट्स को इंक्लूड किया है, हमने 2 तरह का डेटा, जहां पे आफ्टर द अमेंडमेंट जो डेटा है वो भी हमने आपको दिया है,
और जो ओरिजिनली फाइल रिटर्न है वो भी डेटा, दोनों तरह का डेटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो हमने अब जो न्यू इम्प्रूव्ड रिपोर्ट है उसको हमने 8 सेक्शंस, डिफरेंट 8 सेक्शंस के अंदर बाइफिकेट किया है। पहला एंटिटी प्रोफाइल, इसके अंदर हमने प्रोफाइल बताई है। सेकंड इज रिपोर्ट समरी, समरी पूरी रिपोर्ट की। थर्ड इज कंप्लायंस चेक, जिसके अंदर हमने आपको जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग एंड जीएसटी फाइलिंग ड्यू डेट। नेक्स्ट टर्नओवर का एनालिसिस, टर्नओवर के अलग 9-10। परचेज के एनालिसिस, जो भी परचेज आईटीसी रिलेटेड जो भी एनालिसिस है वो इसका एक अलग। प्रेडिक्टिव टैक्स लायबिलिटी का एक अलग सेक्शन है, और लास्ट के अंदर लिस्ट ऑफ जीएसटी जो भी नोट इशू है उसकी एक अलग है, जो कि तो ये 8 तरह के अलग अलग सेक्शंस हैं। अब हम एक एक करके हर एक सेक्शन को समझेंगे कि हमने उसके अंदर क्या क्या एनालिसिस दी है और कैसे आपके लिए यूजफुल हो। फर्स्ट इज एंटिटी प्रोफाइल। तो आप राइट हैंड साइड में देखोगे हमने जो रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट है वो भी आपको प्रोवाइड किया है, कि जिससे आपको एक ट्रू एंड फेयर व्यू आइडिया लग जाए कि किस तरह का आपको एनालिसिस निकल कर आएगा और किस तरह की एक रिपोर्ट। एंटिटी प्रोफाइल है जिसके अंदर हम लीगल नेम, ट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशन, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, विंटेज, कितना पुराना रजिस्ट्रेशन है, कैंसल्ड है तो कब से कैंसल्ड है, टैक्स पेयर टाइप रेगुलर है क्या है, कॉम्पोजिट, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, फिर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, जुडिक्शन डिटेल्स, सेंटर है, स्टेट है, ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर, एक ईमेल आईडीज भी आ, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आ गई स्लैब के अंदर की कौन से स्लैब। लास्ट के अंदर एचएसएन डिटेल जो हमने न्यू अभी इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे हम डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज जो एट द टाइम ऑफ जीएसटी, वो एक नई डिटेल्स। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव समरी। सर एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर हमने 2 पार्ट्स के अंदर इसको बात किया है। एक जहां पे जो मेरे इश्यूज हैं जिसके अंदर फ्लैगिंग इन्वॉल्व है, जहां पे क्वांटिटी, जहां पे हमने फ्लैगिंग दी है। सेकंड इज इंफॉर्मेटिव, जहां पे हमने आपको सिर्फ इंफॉर्मेटिव बताया है कि ये सारे सेक्शंस के अंदर ये हमने एनालिसिस दिया और इसका क्या मीनिंग विद रिमार्क। तो हमने इसको 2 तरह से बात। नेक्स्ट इज कंप्लायंस चेक। कंप्लायंस चेक्स के अंदर हमने 2 तरह के एनालिसिस दिए सर। एक है मेरी जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग जो आप देख रहे हैं 30 के अंदर। तो हमने क्या किया है, बेसिकली जो भी मेरी बेस्ड ऑन द जीएसटी कंप्लायंसेस अंडरटेकन, हमने 30 में से स्कोरिंग दी। तो एज वी ऑल नो कि एक नॉर्मल एसएससी के लिए जीएसटी के अंदर 3 तरह की रिटर्न मैंडेटरी है, एक जीएसटीआर 1, एक जीएसटीआर 3B और एक जीएसटीआर 9 विच इज एनुअल। एंड फोर्थ क्राइटेरिया हमने यहाँ पे सेट किया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट। तो हमने क्या किया है कि हर एक रिटर्न को 1 नंबर। तो क्योंकि जीएसटीआर 1 जो है मंथली रिटर्न है, हर महीने में 1 रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमने एक रिटर्न को 1 नंबर दिया, टोटल 12 रिटर्न हो गई, तो टोटल नंबर हो गया 12। ऐसी जीएसटीआर 3 भी हर महीने एक फाइल होती है, तो टोटल 12 नंबर। जीएसटीआर 9 जो है एनुअल रिटर्न होती है, तो वो साल में एक बार होती है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है, अब आउट ऑफ 30 हमने स्कोरिंग दी है कि कितनी एक्चुअल स्कोर होगा बेस्ड ऑन देयर कंप्लायंसेस। अब अगर किसी एसएससी ने अगर टाइमली कंप्लायंस किया है तो हमने उसको 1 में से 1 पूरा, अगर उसने लेट फाइल किया रिटर्न तो हमने आधा नंबर, और अगर उसने फाइल ही नहीं करी तो हमने पूरा नंबर। बेस्ड ऑन दिस हमने उसको स्कोरिंग दी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एसएससी को 26 नंबर मिले हैं, तो उस पर्टिकुलर कि उसने कब कब कौन सी रिटर्न फाइल करी है, हमने नेक्स्ट जो A2 के अंदर अपना जीएसटी कंप्लायंस फाइलिंग डेट दी है उसके अंदर डेट्स भी दी है, कौन कौन क्या ड्यू डेट थी जीएसटीआर 1 की, 3B की, जीएसटी का फाइल करी और कितने डिले से, तो इस तरह की भी हमने डिटेल्स आपको दी। नेक्स्ट आ जाते हैं सर टर्नओवर एनालिसिस में। टर्नओवर एनालिसिस में इस स्लाइड के ऊपर हमने सबसे पहले डिस्कस किया सेल्स एंड परचेज, जो कि हमारा एक नया, क्योंकि ये हमारा इंप्रूव्ड है। इसके अंदर पहले हम जो है विदाउट अमेंडमेंट देते थे जो सेल्स, और अंदर हमने विद अमेंडमेंट इंक्लूड कर लिया है। तो जो भी सब्सिक्वेंट ईयर में भी अगर कोई मेरी अमेंडमेंट हुई है तो वो भी हम, तो ये हमने क्या किया सर, जिस साल की आप रिपोर्ट जनरेट करते हो उससे पिछले 2 साल का भी डेटा हम आपको देते हैं, एनालाइज हैव अ ट्रेंड की, इससे पता लगता है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है इसका, डाउनवर्ड ट्रेंड है सेल एंड परचेज का, ये हेल्प। नेक्स्ट इज उसी का टर्नओवर ब्रेक। तो अगर हमने बात करी, हमने पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की सेल्स दी, फाइनेंशियल ईयर का हमने ब्रेक डाउन भी दिया है आपको। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड नीचे देखेंगे तो हमने उसको B2B, B2C एक्सपोर्ट ये सब भी बताया आपको। उससे आपको पता लगता है कि इसका रेवेन्यू कंसंट्रेशन कि क्या ये B2B में ज्यादा है, B2C में ज्यादा है, क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी। नेक्स्ट इज टर्नओवर एनालिसिस के अंदर ही जो हमने नया इनकॉर्पोरेट किया है वो इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट रेशो क्या करती है, कंपेयर करती है आप विद सेल्स। तो इससे पता लगता है आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, मार्जिनल हेल्थ कितनी, आपका अलाइनमेंट हो जाती है परचेज इन सेल्स। पोटेंशियल बिल्डअप पता लगता है इन्वेंट्री का, अगर आपकी परचेजेस बहुत ज्यादा हो रही है सेल्स, तो आपको एक बार को आप चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल से, इसका जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है क्लोजिंग। एंड हायर दिस रेशो द रिस्क इज मोर, जितनी इनपुट आउटपुट रेशो ज्यादा होगी उतना नेगेटिव इंपैक्ट। तो ये 3 साल की रेशो हमने आपको दी है, हैव अ कंपेरिजन। नेक्स्ट इज हमने सीजनेबिलिटी बताई है सर आप, क्योंकि मेरे पास 3 साल का डेटा अवेलेबल था इसी का, तो उस 3 साल के बेसिस पे हमने कौन से इसके पीक मंथ्स, कौन से इसके लो मंथ्स हैं वो भी हम, एंड दिस इज ऑल एआई पार्ट। नेक्स्ट इज टर्नओवर एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट है स्टेट वाइज टर्न। तो इसके अंदर जो भी आपने टर्नओवर हमने आपको भी टर्नओवर एनालिसिस के अंदर बताई B1 के अंदर, उसके स्टेट वाइज कौन कौन सी स्टेट के अंदर उसने सेल्स करी है उसका भी हमने आपको मिक्स बता दिया। इट हेल्प्स इन
एनालाइजिंग की मेरी कौन कौन सी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंस है, कंसंट्रेशन क्या है, मल्टी स्टेट जीएसटी कंप्लायंस एक्सपोजर है, और बैलेंस रिस्क ऑपरेशन है या नहीं, इस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ। नेक्स्ट सर, ये बहुत अच्छा एनालिसिस हमने दिया है एचएसएन समरी का भी। तो इससे बेसिकली हमने क्या दिया आपको, जो भी आपने सेल्स रिपोर्ट करी थी उसमें आपने कौन कौन से एचएसएन, अब जैसे हमने आपको बताया एंटिटी प्रोफाइल के अंदर हमने एक आपको अपने एचएसएन रिलेटेड एट द टाइम ऑफ जीएसटी फाइलिंग, एट द टाइम ऑफ जीएसटी रजिस्टर एचएसएन, बट दैट डजंट सिग्निफाई कि ये वही एचएसएन है जो जिसमें एक्चुअली डील कर। तो एक्चुअल अगर मेरे को ये पता करना है कि ये एसएससी जो है वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत है, उसकी जो सेल्स हुई है, जो एक्चुअल सेल्स जो उसने रिपोर्ट करी है, वो कौन से एचएसएन के अंदर रिपोर्ट, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता लगता है कि अमंग्स द एचएसएन, जो भी उसने मल्टीपल एचएसएन यूज, उसके टॉप एचएसएन कौन, उसका हीरो प्रोडक्ट कौन सा, ज्यादा सेल्स कौन से, तो आपको उसको बिजनेस को एनालाइज करने के लिए उसका बिजनेस की डिस्क्रिप्शन कौन से उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, उसको एनालाइज करने में बहुत। नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो है सर एनालिसिस ऑफ इनवॉइस और क्रेडिट नोट्स। सर ये बहुत अच्छा एनालिसिस होता है फ्रॉम द बोरोइंग पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक्स के लिए बहुत अच्छा एनालिसिस है ये, क्योंकि होता क्या है बेसिकली, अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी पर जो क्रेडिट नोट्स किस वजह से हम क्रेडिट नोट रेज कर सकते हैं, क्रेडिट नोट्स कब इशू करते हैं, या तो मेरी कोई डेफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो कि मेरी सर्विसेज जो है वो खराब मैंने प्रोवाइड करी तो मेरे को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, या मेरे गुड्स जो है वो वापस आ गए, मेरे गुड्स ही खराब, तो मेरे को क्रेडिट नोट रेज करना पड़ता है कि मेरे गुड्स डिफेक्टिव। तो इन बेसिकली क्रेडिट नोट्स रेज कर सकते हैं इन इशू पे अंडर, बट हमने एनालाइज किया, हमने क्योंकि मोर देन 17,000 रिपोर्ट तरह की, समझा कि लोग बोरोइंग लोन लेने के पर्सपेक्टिव से क्या करते हैं कि जब लोन लेने होता है तब तो एक इनवॉइस रेज कर देते हैं, और जब लोन लेने के बाद क्रेडिट नोट, तो उससे होता क्या है कि मेरी टर्नओवर जो है इन्फ्लेट रहती है एट द टाइम ऑफ द लोन, क्योंकि लोन जो है वो सारे टर्नओवर बेस्ड लोन होते हैं, तो मेरी टर्नओवर वंस आई गेट द लोन, मैं क्रेडिट नोट रेस को नलीफाई। अब इस 3 साल के क्रेडिट नोट परसेंटेज देने से ये पता लग जाता है हमें एसएससी के बारे में कि ये कितने परसेंटेज जो है वो क्रेडिट नोट रेस इन कंपेरिजन टू इनवॉइस। तो अगर ये परसेंटेजेस बहुत ज्यादा है, जनरल ये परसेंटेज होती है 1 से 2% जनरल, पर अगर ये परसेंटेज उससे ज्यादा है, क्रेडिट मैनेजर को ये पूछना चाहिए हाई परसेंटेज ऑफ क्रेडिट नोट रेस करने का क्या रीजन, क्योंकि करंट ईयर की अगर आप ये परसेंटेज निकालोगे तो दैट विल नॉट गिव यू करेक्ट, क्योंकि क्रेडिट नोट तो लोन लेने के बाद करने वाला, तो इसलिए हम पिछले सालों का आपको यहाँ पे परसेंटेज दिए, जिससे कि आप पिछले साल के परसेंटेज देख के कि ये परसेंटेज अगर ज्यादा है तो क्या क्या रीजन है उस हाई, अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो गुड है, वरना आपको ये इन्वेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एनालिसिस जो कि है मेरा एनालिसिस ऑफ टॉप बायर्स। तो इसमें मैं जो आपके मोर देन 5% जिसको आप सेल, जो जिस बॉरोवर को आप की हेल्प ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, उसके कौन से टॉप बायर्स है जिनको उसने मोर देन 5% किया, उसकी यहाँ पे आपको टोटल एनालिसिस, और ये भी निकल के आ जाता है कि कितनी वैल्यू को उसने सेल सप्लाई करी। नेक्स्ट इज ये भी सर बहुत अच्छा एनालिसिस है, बायर हुज सप्लायर्स व्हिच इज कॉमनली रेफर्ड एज सर्कुलर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने पहले समझा, जहां पे मैंने इनवॉइस विजा विज क्रेडिट, जहां पे मैं एक पार्टी इनवॉइस रेज कर देती है, एज कम्पेयर टू दिस एनालिसिस, इसके अंदर क्या होता है कि दोनों, फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए बी को इनवॉइस रेज कर देगा और बी ए को इनवॉइस रेज कर देगा, दोनों की ट्रेड, दोनों ही लोन लेने चले जाएंगे और दोनों ही ट्रांजेक्शन होगी। इस तरह की जो भी ट्रांजेक्शन, हम ये नहीं कह रहे कि दोनों ही हर केसेस में वो दोनों अपने टर्नओवर इन्फ्लेट करने के, देयर मे बी रीजन जहाँ पे वो कोई ट्रांजेक्शन जॉब, बट हम अपनी रिपोर्ट के अंदर जो भी इंस्टेंस सारे, जैसे हमने सारी ट्रांजेक्शन जो है नाउ इट्स अप टू द क्रेडिट मैनेजर जो टॉप ट्रांजेक्शन है वो एनालाइज करे और अपने बोरोवर से पूछे। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ टर्नओवर रिपोर्टेड इन जीएसटी। तो बेसिकली इसके अंदर हमने कोई एक कंपैरिजन दिया है जहां पे हमने जीएसटीआर 1 के अंदर आपने कितनी टर्नओवर रिपोर्ट करी है विजाविज जीएसटीआर 7 वो होती है जिस टर्नओवर पे आपका टीडीएस कट, उस टर्नओवर को विजाविज जीएसटीआर 8 वो होती है जिस टर्नओवर पे आप जो बेसिकली सप्लाई जिस पे टीसीएस। तो इन तीनों टर्नओवर, क्योंकि टर्नओवर जो है वो अलग अलग अक्रॉस जीएसटी डिफरेंट जो भी रिटर्न है उसके अंदर रिपोर्ट हुई है, तीनों की पैरेंट निकले कि क्या सही है क्या गलत है, इन तीनों जो रिपोर्ट जो टर्नओवर इन तीन रिटर्न्स के अंदर वो भी। नेक्स्ट इज जीएसटी सप्लायर कंप्लायंस एनालिसिस। सर ये बहुत अच्छा एनालिसिस है, ये बेसिकली क्या करता है, जो हमने बात करी थी कॉन्टीजेंट, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को बताता है कि जैसे कि आज की डेट में क्या होता है कि जीएसटी के अंदर जो मैक्सिमम नोटिस आज की डेट में आ रहे हैं वो इसी बेस पे सप्लायर के नॉन कंप्लायंस की वजह से जो परचेजर होता है जिसने आईटीसी लिया है उसको पकड़ा जाता है और उसको बोला जाता है जितना भी आईटीसी उसने रिवर्स करे विद इन। तो हमारा
AI पावर्ड जीएसटी रिपोर्ट क्या विद इन लेस देन 1 मिनट, जो ये रिपोर्ट जब आपके जितने भी सप्लाई वो सबको स्क्रब करता है, उनके उनमें से जितने भी सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सस्पेंड हो उनको यहाँ पे लाके उनसे कितनी परचेज करी होगी वो सारी फिगर्स आपको यहाँ पे, और बताने का पर्पज ये है कि क्योंकि ये ऐसे सप्लायर्स हैं जिनका और आपने उससे कोई ना कोई परचेज, तो आपको ये बताता है कि अगर आपने उन पे आईटीसी अवेल किया है तो फ्यूचर में आपको इस पे जीएसटी नोटिस, तो इस तरह से ये आपको एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बताता है कि फ्यूचर में आपको ये लाइबिलिटी आनी है। अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है तो आप विदाउट वेटिंग फॉर द जीएसटी आज ही आप फर्दर ये आप ये क्रेडिट मैनेजर कैसे हेल्प करता है कि अगर कोई बोरोवर है वो अगर एक्स अमाउंट का लोन लेने आपके पास, आपको दिखता है यहाँ पे इसके कॉन्टिजेंट लायबिलिटी उससे ज्यादा या उतने अमाउंट तक की है, तो आप जो भी आप लोन देना उसको या जो भी आप वो डिस्बर्समेंट जो है इस अमाउंट को कंसिडर करके ही आगे, बिकॉज ये फ्यूचर में लायबिलिटी उसके पास आनी ही आनी है, तो फ्यूचर में आपको कैसे लोन वो भी एक, इसलिए ये दोनों के लिए हेल्प, लोन डिस्बर्समेंट क्रेडिट मैनेजर के लिए भी और बोरोवर। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ टॉप सप्लायर्स एज वी हैव प्रोवाइडेड, जो जहां पे मैंने टॉप बायर्स की डिटेल दी थी, यहाँ पे हमने टॉप सप्लायर्स हैं जिनसे मैंने परचेज किया मोर देन विद, वो भी हम। नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड एनालिसिस, जहां पे हम आपको प्रिडिक्टिव लायबिलिटीज भी बता कि जहां पे सबसे पहले जो होता है जीएसटी के अंदर क्या होता है, जो हमारे जैसे 26 ईयर के अंदर मेरा जो भी टैक्स कट होता है इनकम टैक्स की जो भी डेटिंग वो 26 ईयर्स के अंदर, तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ माई रिटर्न जो भी मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर लेता हूँ जो भी, और तो ऐसे ही जीएसटी के अंदर जितनी भी मेरी एक्यूमुलेटेड जो मेरा आईटीसी होता है वो सारा 2B के अंदर, तो एज अ जनरल प्रिंसिपल जो भी मेरा 2B के अंदर होता है मैं उससे ज्यादा अपना 3B के अंदर नहीं ले, सब्जेक्ट टू सर्ट। तो अगर कोई भी आपको दिखता है कि अगर किसी भी एसएससी ने जीएसटी 2B से एक्सेस क्रेडिट ले रखा, तो वहां पे आप ये मान के चलिए कि उतने अमाउंट के ऊपर फ्यूचर के अंदर उसको जीएसटी से नोटिस, अब अगर वो अमाउंट जो है वो एक्सेस हुआ है तो उसके कोई ना कोई रीजन भी हो सकता है कोई एक एक्यूमुलेटेड क्रेडिट पड़ा हो, जो पुराने पीरियड का क्रेडिट पड़ा हो जिसकी वजह से 2B के अंदर ना रिफ्लेक्ट हो रहा हो वो एक्यूमुलेटेड पिछले, या कोई मेरी कैपिटल गुड्स की परचेज हो उसकी वजह से मेरा एक्यूमुलेट, उसकी वजह से अगर कोई क्रेडिट है और कोई आपको बोरोवर जो है वो जस्टिफाई करवा दे इस अमाउंट को कि मेरा एक्सेस क्रेडिट का कोई एक रीजन, तो ओके, वरना आपको इस अमाउंट के ऊपर फिर जैसे मैंने आपको पहले बात की कॉन्टिजेंट जीएसटी, तो वहां पे इसमें भी अगर आपकी कोई लायबिलिटी अगर रहती है तो आपको फाइनल लोन जो भी हम क्रेडिट देना कंसिडर। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव टैक्स लायबिलिटी के अंदर जीएसटीआर 1 और 3B का डिफरेंस, तो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी एसएससी के लिए 3 तरह की रिटर्न जिसके अंदर जीएसटीआर 3B इंक्लूड, तो जीएसटीआर 1 रिटर्न जो होती है जीएसटी के अंदर वो होती है टैक्स रिपोर्टिंग रिटर्न, इसके अंदर मैं अपना टैक्स रिपोर्ट कि मेरी इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की कितनी टैक्स लायबिलिटी थी उसको पे करता हूं मैं जीएसटीआर 3B के। तो अगर किसी भी एसएससी की जीएसटीआर 1 की लायबिलिटी ज्यादा है और जीएसटीआर 3B की लायबिलिटी कम है, मतलब अगर किसी की लायबिलिटी 100 रुपए थी और 1 के अंदर उसने लायबिलिटी पे करी 80 रुपए, तो उसने शॉर्ट लायबिलिटी, इस तरह की कोई भी शॉर्ट लायबिलिटी होगी तो वो भी हम आपको यहाँ पे, और अगर कोई शॉर्ट लायबिलिटी है तो वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले ऐसी इस केस के अंदर डिपार्टमेंट जो है जीएसटी इस एसएससी को इस लायबिलिटी पे विद इंटरेस्ट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रेडिट के लिए कि अगर इसके अंदर कोई एक सब्सटैंशियल लायबिलिटी आपके पास। नेक्स्ट इसी के अंदर सर एक टैक्स पेमेंट बिहेवियर की हम बात करते हैं, जहां पे जीएसटी के अंदर क्या होता है साहब कि अगर मेरा 100 रुपए का टैक्स है तो उसको पे करने के लिए मेरे पास 2 तरह के ऑप्शन, एक मैं कैश में पे, एक मैं दोनों के थ्रू मैं अपनी टोटल टैक्स। अब क्या है कि अगर हम किसी भी एक बिजनेस को देखें, नॉर्मल किसी भी एक बिजनेस को, तो जनरली 10 से 12% के प्रॉफिट मार्जिन और 10 से 15% का ऐसा सैलरी कॉस्ट होगा, जीएसटी नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 25 से 30 के खर्चे ऐसे होंगे या ऐसा कंपोनेंट होगा पर नहीं, तो मोटा मोटा बात की जाए तो 70% का ऐसा होगा जिसपे मेरे को आईटीसी मिले। तो अगर आपके सामने अगर केस ऐसा आता है जिसके अंदर मोर देन 90% या मोर देन 75-80% अगर लायबिलिटीज जो है वो आईटीसी से डिस्चार्ज हो, तो ये एक रिस्क एरिया है, कंसर्निंग है। वहां पे आपको पूछना चाहिए कि आपने इस इतनी हाई यूटिलाइजेशन क्यों करी फॉर पेमेंट ऑफ द, अगर वो जस्टिफाइबल रीजन देता है आपको तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबल चांसेस कि जहां पे उसने कोई ना कोई गलत प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करी हैं टू टेक द आईटीसी एंड टू डिस्चार्ज द टैक्स। इसके अंदर भी हमने देखा कि 2 तरह के मेन रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो परसेंटेज है जो हमने बोला कि 60-70 की होनी चाहिए आईटी, ये बढ़कर 80-90, वो 2 ही केसेस हमें लगता है कि मेजरली हो, जहाँ पे उसका कोई क्रेडिट एक्यूमुलेशन, मेरे कोई क्लोजिंग स्टॉक ऐसा, या मेरा कोई रिसेंटली मैंने कैपिटल गुड्स परचेज करे हो जिन पे हैवी आईटीसी हो और जो मेरा आगे फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट 5-6 सालों में जो कंज्यूम, अगर ये कोई 2 चीजें हैं जो कि आप इजिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं,
परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स आप अपने फिक्स एसेट्स के रजिस्टर कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन जो है आप अपने क्लोजिंग स्टॉक से वेरीफाई कर, इस तरह से वेरीफाई करके आप इस को सही बोल। नेक्स्ट इज जीएसटी नोटिस, ये भी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंदर हमने क्या की, इसके अंदर बेसिकली जिस भी डेट पे रिपोर्ट फेच हो रही है जीएसटी, उससे पिछले 60 दिनों के अंदर जो भी नोटिस इशू है उस नोटिस की डिटेल बता, हम आपको ये क्वांटिफाई करके कितने अमाउंट का नोटिस है, कितनी लायबिलिटी है, ये नहीं बता, क्योंकि हम हमारे पास भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जो एपीआई के थ्रू, जो लिमिट लेजिटिमेट सोर्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एपीआई ड्रिवन, हम कोई भी इलेजिटिमेट मतलब कोई भी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस नहीं कर, जो भी एपीआई के थ्रू हम डेटा आता है हम आपको वो पॉपुलेट अंदर, ये आपको एआरएन क्या है नोटिस का, क्या डेट है नोटिस, क्या ड्यू डेट है रिप्लाई, अगर उसने डेट सबमिट किया कर दिया है रिप्लाई तो उसकी डेट ऑफ सबमिशन क्या है, नोटिस कौन सा है, शो कॉस्ट नोटिस है, उसमें कौन से सेक्शन के अंदर इशू है, 73 74, कौन से पीरियड का इशू, इस तरह की सारी, तो इस तरह का सारा एनालिसिस रहता है। और लास्ट में हम आपको एक अनेक्सर देते हैं जीएसटी फिटनेस रिपोर्ट के अंदर, जहां पे मैंने जैसा बताया आपको मंथली डेट, पहले हमने आपको कंसोलिडेटेड डेटा दिया था ईयर ऑन ईयर 25 26 24 25 3, यहाँ पे आपको मंथली डेटा, अब मंथली डेटा भी हम आपको दो फॉर्म में देते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि इसके अंदर हम आपको देते हैं मंथली डेटा आफ्टर अमेंडमेंट, तो ये वो डेटा हो गया कि जो अगर किसी एसएससी ने, टैक्स पेयर ने अगर अमेंडमेंट फाइल करी है तो अमेंडमेंट के बाद जो भी डेटा अमेंडेड डेटा वो हम आपको देते हैं, और साथ ही साथ जो ओरिजिनली फाइल हुआ डेटा, तो अगर किसी को कंपैरिजन करना हो कि ओरिजिनल क्या फाइल हुआ था और अमेंडेड डेटा है तो वो दोनों तरह का डेटा, और लास्ट में हम अनेक्सर के अंदर आपका सेल रजिस्टर भी दे दें। सेल रजिस्टर क्या है सर, जैसे मैंने आपको पहले बायर्स और सप्लायर, टॉप बायर एंड टॉप सप्लायर, तो आपको कंसोलिडेट फिगर, एबीसी लिमिटेड को आपने कितना सप्लाई किया और एक्सवाईजेड लिमिटेड से आपने कितना परचेज, बट इसमें हमने आपको उसकी कंसंट्रेशन देखने के लिए कि आपने कौन, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक मंथ में ही वो सेल परचेज हुई है, तो उसमें आपने ये एनालाइज करने के लिए कि वो किस किस मंथ में कंसिस्टेंसी कितनी है सेल्स और परचेज की, वो दिखाने के लिए भी हमने आपको सेल पर, तो ये हो गई सर हमारी जीएसटी फिटनेस रिपोर्ट की बात, जो हमारे जीएसटी क्या है, किस किस तरह की, जस्ट टू समराइज हमने अलग अलग तरह के एनालिसिस आपको प्रोवाइड करे, जहां पे हम कंप्लायंस की रेटिंग दी, फाइलिंग कंप्लायंस के कैलेंडर की ड्यू डेट दी, कंप्लायंस की ड्यू डेट्स क्या थी, कितना डिले हुआ, फिर हमने आपको उसकी सेल्स फिगर दी 3 सालों की, फिर हमने सेल परचेजेस दी, फिर उसका सेल परचेज का हमने आपको कॉम्पोजिशन दिया, फिर हमने एचएसएन वाइज दी, स्टेट वाइज आपको प्रोडक्टिव लाइबिलिटी बताई 3B और 2A 3B, फिर हमने आपको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बताई, जीएसटी कंप्लायंस की, जो सप्लायर, फिर हमने आपको टॉप बायर से सप्लायर्स दिए, फिर हमने आपको जीएसटी नोटिस के, तो ये सब एनालिसिस हमने आपको दिए जीएसटी, जो कि ये रिपोर्ट है वो लेस देन 1 मिनट के अंदर रिपोर्ट जनरेट, तो हमने लेस देन 1 मिनट के अंदर आपको ये सारा एनालिसिस दिया, एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, जहाँ पे आप एक प्रोफेशनल जो है वो एक बैलेंस शीट उठाता है और उसको एनालिसिस करता है एंड देन आपको ये रिपोर्ट बना के देता है, एज कम्पेयर टू दैट हमने आपको ये लेस देन 1 मिनट आपको ये सारे। अब बात करते हैं कि ये रिपोर्ट जनरेट कैसे, तो सर ये रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बड़ा ही सिंपल वो है, तो हमारी www.taxocredit.com करके वेबसाइट है, आप उस पर जा बेस्ड एप्लीकेशन, हमारी टीम से लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट सर आप जीएसटी फिटनेस रिपोर्ट सेलेक्ट को, बेसिकली इस रिपोर्ट को जनरेट 3 तरह की, एक आपके पास जीएसटी नंबर होगा, सेकंड आपके पास जीएसटी का यूज, थर्ड आपके पास, ये 3 आपके पास क्रेडेंशियल्स होंगे तो आप ये इजीली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं विद इन लेस देन 1। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्योंकि इसके अंदर जीएसटी यूजर नेम इन्वॉल्व है और आपका ओटीपी इन्वॉल्व है, तो देयर मे बी केसेस जहाँ पे यूजर आपसे बोले कि मैं तो ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर, तो इसीलिए हमने इस बात को ध्यान रखते हुए इसके अंदर इस रिपोर्ट को जनरेट करने के 2 तरीके रखे हैं, 2 अलग अलग तरीके, एक सेल्फ सबमिशन मोड और एक कस्टमर सबमिशन। सेल्फ सबमिशन मोड कैसा, सेल्फ सबमिशन मोड वो है कि जहां बॉर्वर जो है, जो आपका जिसकी आप ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट वो आपसे कि मैं आपसे ओवर द टेलीफोनिक या आपके सामने बैठ, तो आपको यूजर नेम और ओटीपी है, तो तब आप सेल्फ सबमिशन मोड यूज, आप दोनों ही चीजें सबमिट करेंगे और आप स्क्रीन पे। दूसरा तरीका क्या है, कस्टमर सबमिशन, जहां पे सामने वाला बोलता है कि मैं तो नहीं देता, तो वहां पे हमने क्या ऑप्शन दिया है कि एक ईमेल का ऑप्शन दिया है, जहां पे आप एक ईमेल आईडी, जो भी बॉर्वर है कोई भी ईमेल आईडी, जरूरी नहीं वो जीएसटी लिंक्ड ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी वो एक्सेस कर सकता है, वो ईमेल आईडी आपको दे, आप उस ईमेल आईडी को एंटर करके सबमिट करते ही बॉर्वर के पास एक उस पर अपना यूजर नेम डाले, ओटीपी डाले, सबमिट, बॉर्वर का काम खत्म, वो इस पिक्चर से बाहर हो जाएगा। जैसे ही वो सबमिट करेगा आपके पास एक अलग डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यूजर के पास, और वो ट्रैक कर सकता है कि उसने यूजर नेम सबमिट किया नहीं किया, ओटीपी डाला ही नहीं डाला, जैसे ही वो ट्रैक करके उसके पास एक ट्रैकर आ जाता है, और जैसे ही वो सबमिट करेगा
आपके डैशबोर्ड पे वो रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट आपके पास जनरेट भी हो जाएगी और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वो मेल भी है। तो इस तरह से ये पूरी रिपोर्ट जो है ये आपके पास, अगर आप कहते हो कि इज नॉट कम्फर्ट, इस तरह से आप जो हमने आज इस सेशन के अंदर डिस्कस किया कि जहां पे हमने बोला कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी जहां पे हम बैलेंस शीट के थ्रू हम एनालिसिस करते थे, जो कि मेरी एक पुरानी एक ओल्ड मैनुअल उस तरह, जबकि हमारे पास एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अवेलेबल है, एआई बेस्ड अप्रोच, मोर ट्रांजेक्शनल डेटा अप्रोच है, जीएसटी डेटा, जहां पे मैं उस सब तरह का डेटा यूज करके मैं विद इन अ फ्यू सेकंड्स, जहां पे मेरे को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है और एक एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो लेस, तो हमें इस तरह का इन्फॉर्मेशन यूज चाहिए रादर देन ट्रेडिशनल। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिशनल बेकार है, बट ट्रेडिशनल के साथ साथ हमें एक ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी यूज करनी चाहिए टू चेक द बिजनेस। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। मनोज जी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अपना जो चेक बॉक्स में है, चैट बॉक्स में आप आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सौरभ विल गिव द आंसर। यस यस, आई ट्राई टू। सौरभ, क्वेश्चन आंसर सेशन में दो क्वेश्चन हैं। Yes, first question is, sir, there is no questions over there actually. Okay, this is There is normal. only This few is in general suggestions. comment. No Yes, yes, challenge. No yes. challenge. If anybody has the question, then please put in the chat box. और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो we move forward, हम आगे चलते हैं। और जैसे सौरभ ने बताया, आई थिंक काफी एक्सटेंसिव सौरभ ने एक्सप्लेन किया। आई थिंक दिस आल्सो एट द वैल्यू, आप सबको लगा होगा इसमें वैल्यू है। फिर भी आप किसी का भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, एनी क्वेश्चन इन द माइंड, तो कॉन्टेक्ट नंबर्स हमारे सौरभ का भी है, मेरा भी है, यू कैन कनेक्ट अस एनी टाइम, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, आप कभी भी कर सकते हैं। आई थिंक चैट इज डिसेबल्ड। काजल, somebody is writing कि chat is disabled. No, sir, it's enabled so anyone can write it. सर, आप टीम ने कंफर्म किया है, आप कोई भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं सर, सौरभ विल एक्सप्लेन यू द आंसर। अदरवाइज सर मेरा नंबर अवेलेबल है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। हाँ, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप भी कर दीजिए, और किसी को किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, यू कैन कनेक्ट विद द सौरभ, और अगर आपको लगे तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो चैलेंज एनी टाइम। कोई क्वेश्चन आ गया आई थिंक सर का ना। अच्छा, ओके, चलिए, कोई कोई बात नहीं है सर। सौरभ नंबर इज हेयर। आप आई थिंक मेरे को लग रहा है कोई ग्लिच होगा, क्योंकि सर कह रहे हैं कि नो सर, आई हैव चेक्ड इट। तो सर आप डायरेक्ट सौरभ को पिंग कर दीजिएगा, आई थिंक ही विल गिव यू द आंसर। और किसी की भी कैसी भी क्वेरी हो सब्जेक्ट को लेके किसी भी तरह से, प्रेफरली यू कनेक्ट विद द सौरभ। अगर नहीं कनेक्ट कर पाए तो माय नंबर इज आल्सो हेयर, आप मेरे से कभी भी कनेक्ट करें। एंड वंस अगेन सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए बहुत सारी प्रोस्पेरिटी लेके आया। दिस इज फ्रॉम द टेक्सोक्रेडिट टीम साइड, एंड थैंक यू मच वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।